आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज शहर बेंगलुरु में कुदुस साहब ईदगाह में जो है शहाब तंगल जो मलबारी लोग जो है केरला से आकर यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे लोग जो है उनके जो दुकानों में बिज़नेस होता है उससे जो है महीना महीना पैसा कलेक्ट करके जो है गरीब बच्चों की शादी या कुछ भी गरीबों के लिए हेल्प करना हो तो ऐसे ही ये इदारा जो है पहले आगे रहता है। आज जो है तकरीबन 70 पर 6 लोगों की शादी हुई, जिसमें 6 नॉन मुस्लिम्स थे। और आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर के नॉन मुस्लिमों की भी शादी जो है यहाँ पे हुई है। यहाँ पे जो है मज़हब की बात जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है शहाब तंगल के अंदर नहीं है। हर टाइम जो है शहाब तंगल हर काम के लिए जो है परेशानी के टाइम पे जो है ये आगे जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आइए जानते हैं इसकी एक तफसीला। मेरे भाई और बहनों, आज ये मास मैरिज को मेरे को आमंत्रण दिया मेरे बहुत खास मित्र। तो मैं कहीं था दूसरे जगह एक मंदिर में था, एक पूजा था, फिर भी मैं भाग गया क्योंकि मेरा मित्र जो है रास्ते वो बहुत मेरे को नहीं तो बहुत डांटेगा, इसलिए मैं इधर भाग के आया। 500 लोग से ऊपर शादी किए हैं, मास मैरिज, हमें बेहद खुशी हुआ। अल्लाह मियाँ आपको आप सबको बरकत दे, शादी का बहुत बहुत मुबारक। और मियाँ शौहर और बीवी खुशी से आनंद से रहो और अच्छा पैसा कमाओ, देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद।
जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आए, फिर आपको कहीं जाना है इसलिए आप यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। सर्वज्ञा नगर के एमएलए हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं केजे जॉर्ज साहब। केजे जॉर्ज साहब इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। सर, हम आपको वेलकम कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെയും പള്ളിയ KMCCയുടെയും ബാംഗ്ലൂർ സംഘം കമ്മിറ്റിയുടെയും ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മഹാസംഗമത്തെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് കർണാടക മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഷിയാക്കൾ സയ്യിദ് മുനവർ അലി തങ്ങൾ, സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ, റൗഷീദ് സെക്രട്ടറി, പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാ ലീഡർമാർക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കർണാടക AKMCCന് കൊല്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് വന്ന കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം നടന്നില്ല. പക്ഷെ ഇനി പ്രാവശ്യം വളരെ നല്ലപോലെ ഒരു 70-75 കപ്പിൾസിന് മാസ് മാരേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വെറും മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടും പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കണം, മലയാളം വലുതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കില്ല. ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുന്ന കന്നഡയിലാണ്. അത് കാരണം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. പക്ഷേ കർണാടക മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഔഷധ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ മുസ്ലിംസ്, അതിലും കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിംസ് വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ വളരെയധികം ആംബുലൻസ് സർവീസാകട്ടെ, ഹോസ്പിറ്റലാകട്ടെ, ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊടുക്കലാകട്ടെ, വേറെ ഏത് കാര്യത്തിനും പുറകോട്ട് നിൽക്കാതെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും നമ്മുടെ ആരീസും NA മുഹമ്മദും നൽപ്പാടും എല്ലാം നമ്മുടെ നൗഷത്തും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. ഒരു കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ഓണായതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് KPCCയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം, വളരെയധികം പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പറയുന്നത്. അഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്നോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്, അപ്പോൾ മോശമാകാന്നോ? ഞാൻ എന്നെ പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്രപോലെ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ വധുവരന്മാരുടെ ദിവസമാണ്. ആ ദിവസത്തിലെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വന്നു വരുന്നത്. അവർ നല്ല കുടുംബജീവനം
പ്രധാനമന്ത്രി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹനീയമായ ഈ കർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിനമാണ്. ഈ മനോഹര और एक खुशी की बात है, हमें हर सभी हमारे एक जगह है, हमारे एक मारवाड़ी ब्रदर है, हमारे शादी को इन्वाइट किया, जो आप में आके ये सही तरीके से गरीबों को मदद करने के लिए ये सही रूट से जा रहा है कर को समझने में के बाद हमें तो बिल पेड करने का तो बाद में दे दो, अभी नहीं, ये बीसीएस अभी बॉन्ड दे अर्जन ने ये बोल दिया था। वो इनका पूरा स्टील आइटम का दुकान है, वो बाबू भाई ने सब देखो खुश होकर बोल रहे हैं बिल भी नहीं होना पैसा भी नहीं होना बोल रहे, माशाल्लाह। यही है इधर सार्थक वन ने इनका ब्लड खून कौन सा है वो सब नहीं देखता न, सभी ये क्या बोलता है इंसानियत वही देखता है माशाल्लाह। टाइम वक्त मेरा नाम बाबू नाम है। मेरे को फ़ोन किया था, शादी इधर करके आया, उसके लिए मैं यहाँ आया था। मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई और हमारा मन हुआ कि हमारा क्या बात करेगा वो आइटम परचेज किया था। मैंने सोचा था पैसा देगा करके, मैं इधर आने के बाद में मेरा मन सेंसिटिव हो गया, शादी के लिए ऐसे ही डोनेट कर दिया। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पहले भी एक बार दिया था ऐसा पैसा दिया। ये कितने लोग को आपको जो आपका आइटम जो स्टील का आइटम है, हाँ साहब, कितने लोग को दिए? 100 लोगों को। अभी नहीं, आज का 77 है, आज का 77 है और अभी देंगे। और शादी हर साल हमारा ग्रुप से शादी होएगा, हर साल ऐसे ही देते रहेंगे सब। तो आप किस लिए फ्री दे सकते? हमारा परिवार ही है ना, हमारा बच्चे लोग है ना, बहन बेटी जैसा ही है ना। तो यहाँ पे आके आपको क्या महसूस हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को नहीं, इधर जात पात का सवाल ही नहीं है। हमारा को बहुत बड़ी खुशी हुई, हमारा बहन है वो पूरा। तो यहाँ पे क्रिश्चियनों की भी शादी, हिंदू लोग की भी शादी, हम जाति देखते भी नहीं है, हमारा एक समान ही है, जात पात का बाटा है। हमारा बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हम इधर आने के बाद में इतना सारा पब्लिक, इतना परिवार देखने के बाद में मेरा मन चेंज हो गया। इसलिए चेंज हुआ सर आपका मन? यहाँ आके बहुत खुशी हुई ना, ऐसा गरीब लोगों की शादी कौन कराता है, ये भी बड़ी बात, खुशी की बात है। Hi, we are a part of BMC program that was conducted. We are there, we are members. So it was really nice to come and be a part of this program because we can get to know a lot of people over here, and especially the program that you have conducted here was awesome, I can tell you. And like we love the program because it's really a very good experience, because when you're giving a social program like this of a lot of weddings happening, it's really wonderful. We would love to have it again, like this kind of programs, so that many members are very happy about it. It's a very good service. So actually I came from very far. I didn't know what is happening here, but after coming here I thought it is a very good inhuman service. No one will do like this. It is a very good thing for the society, and actually I never go anywhere, but I was overwhelmed by the response. So many people you are feeding and you are giving so many household items. Actually it is great. I am so happy that I am being a part of this program today. आज माशाल्लाह 78 जोड़ी शादी हो गया है, उसमें मुस्लिम भी उसका भी है, नॉन मुस्लिम्स का है। हमारा जो एप्लीकेशन जो है पूरा लिया है। लास्ट में पहले 70 था, बाद में लास्ट मोमेंट सर्वे टाइम में भी एक 8 एप्लीकेशन आया, उसमें 6 नॉन मुस्लिम्स का आया था, मुसलमान का 72 आया था। इंशाअल्लाह पूरा सर्वे कर को खुशी से अब तक हो गया, निकाह भी हो गया पूरा काम। आज का प्रोग्राम कैसा रहा पूरा? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गया। एक मेन क्या है, अच्छा दुआ में लिया है और लीडर्स भी आ गया है पूरा कम्युनिटी। ये तो हमें केरला से आया है, बिजनेस के लिए आया है, काम के लिए आया है। हमें बिल्कुल एक यूनिटी बनाया है, वो यूनिटी सभी पैसा कलेक्ट कर को यहाँ का लोकल को, इसमें कोई मलबारी नहीं है, एक ही एक मलबारी है, बाकी पूरा 77 भी यहाँ का लोकल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को खुशी है ये बात। ये तो हमें जहाँ कमाते है उधर खर्च करना है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बोला है ना, गरीबों को बांटो बरकत मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें जो दुकान वाले काम वाले उसके ने महीने कलेक्शन कर को क्राउड फंडिंग करके हमें ये पूरा काम हो रहा है। कितने दिनों से तैयारी होती है? ये 3 महीने से 4 महीने हो गया। 3 महीने पहले हमें अनाउंस किया, 1 महीना टाइम दिया एप्लीकेशन लेने के लिए, 1 महीने सर्वे को गया, 1 महीने परचेज से दूसरा काम ये पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक से अच्छा हुआ है। दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत सारे सामान दिए गए हैं, तो देना है ना उनको, वो सभी लेने ताकत है तो इधर आके बैठता नहीं है ना, तो
तो उनको खुशी है। यहाँ तो बेंगलुरु में हमें सुनिए कॉलेज जैज़ देता है, दावत देता है, लेकिन गोल्ड कोई नहीं देता सुनिए, लेकिन सही है नहीं मालूम नहीं। लेकिन हम पहले से हमारा जितना होता है कैपेसिटी वो हिसाब से मैं गोल्ड भी दे रहा हूँ। और वो लोग वो देख के उसको खुश होता है ना, वो खुशी हमको भी दिल बहुत अच्छा लगता है। ये यूनिटी इखलास से काम करे तो गरीबों को बहुत मदद करता है। वो उससे क्या करना, सभी हमारा नियत ठीक रहना। दुनिया में कुछ कमाने का नहीं है, दुनिया में थोड़ा ही दिन रहेगा। कुछ कमाया तो वो आखिर में फ़ायदा मिलेगा। यह कमाई में बरकत है, लेकिन दूसरा कमाई में बरकत है तो भी दुनिया में है, आखिर में नहीं है। उसे आखिर के लिए कुछ कमाओ। ये है सो टाइम में कुछ ना कुछ गरीबों को मदद करो। वो एक मैसेज है ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर्स का तरफ से हम देने तैयार हैं। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन कलीम के साथ। बात तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर और शिहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का एहतमाम होता है। और इन्होंने शुरुआत की थी बिल्कुल मुख्तसर से अंदाज़ में, लेकिन मालिक का एहसान है कि ये लोग हर साल शादियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। कभी 100 शादियां करते हैं, कभी 80 शादियां करते हैं, कभी 110 शादियां करते हैं। इन लोगों की बड़ी मेहनतें हैं। बात असल में यह है कि ये लोग केरला से आए, बेंगलोर में आए, कर्नाटक में आए, यहाँ रहकर ये लोग कमाते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा ये लोग निकाल कर इस तरह के गरीबों और यतीमों और नादारों और ज़रूरतमंदों की शादियों का इंतज़ाम करते हैं। आज के इस मौके पर 78 तकरीबन शादियां हुई हैं। उनमें से 6 शादियां गैर मुस्लिम भाइयों की भी हैं, और उसमें से एक शादी जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी है। और ख़ुसूसन जो केरला से ताल्लुक़ रखने का एक जोड़ा है, उसकी जो आरस है, दुल्हन है, वो नाबीना है। आम तौर पर केरला वाले कर्नाटक में आकर अपनी शादियां नहीं कराते, लेकिन यहाँ के लोगों के जज्बे को देखकर उन लोग यहाँ आए और इन शादियों में वो लोग भी शरीक रहे। और शादियों के इंतज़ामात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तमाम केरला के मुस्लिम भाई अपने यहाँ जो कर्नाटक में पहुँचे हैं या फिर दीगर रियासतों में हैं, ये तमाम तर लोग आपस में एकजुट होकर हर महीना या 6 महीने में एक मरतबा थोड़ा थोड़ा ये पैसा जमा करते हैं। और लाखों की तादाद में लोग पैसा जमा करके सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के इरादे से ये लोग इतना बड़ा इंतज़ाम करते हैं। और इस इंतज़ाम में सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ते तय किए जाते हैं। वो लोग जब रिश्ता तय करके आते हैं तो फिर उस रिश्ते से मुताल्लिक़ क्या सही है क्या गलत है, उसकी जांच के लिए हमारी एक मुस्तकिल कमेटी है जिसके निगरान हमारे हाजिबा और रहमान और इनकी पूरी टीम है। और फिर उसके अलावा जब जैसे ही हमारी इंक्वायरी पूरी होती है तो फिर उसके बाद ख़रीदारी का मसला होता है। जहेज़ का पूरा साजो सामान इन्हें दिया जाता है, और साथ में जेवर के नाम पर दुल्हन के लिए एक छोटा सा गोल्ड भी दिया जाता है। और उसके साथ साथ मज़ीद ये है कि आमदो रफ्त का ख़र्च भी दिया जाता है, और उस पर फिर मज़ीद ये है कि 1 महीने का राशन भी इन्हें दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये शादी करने के बाद जब अपने घर पहुंचेंगे तो कम से कम 1 महीना 15-20 दिन वो इत्मीनान से अपने घर में रहें और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारें। इस बात का पूरा यहाँ ख्याल रखा जाता है। इसी जगह एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जो भी रिश्ते जमे, अल्हम्दुलिल्लाह एक कर्नाटक के थे, आंध्रा के थे, तमिलनाडु के थे, जो तकरीबन बेंगलुरु के एक 200-300 किलोमीटर से दूर से आए थे। वो जितना भी रिश्ते थे हमें उसमें तय करें, उनको तहकीक करें, जो जाकर उसमें कुछ गैर गलत हो तो उसे बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए। तकरीबन 150 एप्लीकेशंस आए थे जिसमें सेलेक्ट कर